So, hello everyone. Welcome to this Neem Raj Sunda Agri series and quiz session. So, yesterday we have completed our 9th lecture. In that lecture, we have already discussed about your types of irrigations, soil conservations, and in that we have already discussed about your drip irrigation, surface irrigation, basin method, ring basin. All that type we have already discussed. And today we are going to discuss about here unit 8, 9, 10. And we'll discuss about your crop production of that is a paddy crop. So let's start it. And before starting, whoever joining in this session, please share this session among your friends so that all also benefited from this session only. Samrat is saying good evening, sir. Good evening, Samrat. Okay. So यूट्यूब वाले भी भाई जितना देख रहे हैं सब लोग शेयर कर दो, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करो ताकि उन लोग भी बेनिफिट ले सके इसका, इस सीजन का। टोटल जो हम लोग फ्री सीजन लेके आ रहे हैं, तो आज जो है लेक्चर 10 है। Lecture 10, and in that, and for the joining of the daily classes, you have to just fill this form, Google form, and this form is in the description box of our YouTube live only, that you can see. And we have test series 99 rupees about your Neem Raj Sunda only. We are providing free quizzes also in our Telegram group. You can join there. And total 25 mock test. In each mock test, we are providing 60 MCQ questions. That is your assertion, region type, statement type, all these. And you have to just pay in this UPI and send the screenshot. So today we'll discuss about your unit 8, that is soil measure constant. Voice is audible, I think, everyone. Yes, sir. Okay, thank you. So soil measure constant, unit 8. First is your metric potential. What is meant by metric potential? That is the potential due to your solid or colloidal matrix. It's called metric potential. Then you will see a capillary potential. Capillary potential क्या है? The energy with which water held in the soil. तो मान लो ये कैपिलरी, जैसे कि ये ट्यूब है और ऐसा कैपिलरी ये रहता है, इसमें वाटर जितना फोर्स में bonding force of the water or the energy with which water held in the soil is called your capillary potential. Then next we will see seepage. Seepage means you just imagine like this is a pipe and water is flowing in this, and in this water flowing, that is vertical direction and horizontal directions. Vertical this one and horizontal, in both direction water is flowing, and this vertical and horizontal flow of water is called your seepage only. Then water loss from the irrigation channel is mainly due to seepage only. You have to remember this thing also. सीपेज किसके लिए होता है आपको, हमारा हॉरिजॉन्टल वाटर लॉस ये सब के लिए होता है। देन पार्कुलेशन क्या है? पार्कुलेशन जैसे कि ये सॉइल सरफेस है, ये ऑलरेडी जो है तुम्हारा सेचुरेटेड वाटर है, सेचुरेटेड और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है इस साल का, और इसमें जो वाटर है ऑलरेडी वाटर रहता है, और ये वाटर जो है नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करके बिलो द रूट, बिलो और डाउन द रूट सरफेस, डाउन द रूट लेवल और सरफेस, water flow towards the into the soil due to response to the gravity only, and that downward movement of water is called your percolations. Then what about infiltration? Infiltration is seen mainly your unsaturated soil only, unsaturated soil, and in that unsaturated soil from the surface only up to root zone only, not beyond the root zone, up to root zone only water is absorbed, and this is it's called your infiltration. That is entry of water from the upper layer of the soil is called infiltration. It is occurring in unsaturated soil. You have to remember this one. Infiltration occurs in your unsaturated soil, and percolation is your occurs in saturated soil only. Then what about leaching? Leaching is same as percolation, but here one major difference is that nutrient and soil both move that along the your downward movement of water. That is called leaching only. Downward movement of nutrient and salt from the root zone
with the water is called leaching. Then what is about your saturation capacity? When all the soil pores are filled with water at a 0 bars is termed as saturation capacity. So this is your also called maximum water holding capacity. It's called saturation capacity. What is maximum saturation capacity or maximum holding water holding capacity? In this point or beyond this point, no water is available to the soil only. एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या रहता है? मैक्सिमम आपका जो है फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट होल्डिंग पॉइंट तक जो है आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है, जो अवेलेबल वाटर भी रहता है किसको, प्लांट को, इसके बीच में देखने को मिलता है ये. Then what about field capacity? Now only we have discussed the soil moisture content after 2-3 days after the irrigations and after the drainage of gravitational water has become very slow and soil moisture content had relatively stable. Then what about soil moisture content after the 2-3 days after your irrigation, then drainage of your gravitational water, after that whatever the amount of water left, that is called your field capacity only. At the field capacity, the large pores are filled with airs and micropores are filled with water. तो इसमें क्या है, field capacity किसको बोला जाता है? जैसे कि आपका macropores filled with air, and what about micropores? Micropores filled with water only. You have to remember this. Then it is considered as upper limit of water available to the plant, and the tension and the field capacity ranges from 0.1 to minus 0.33, that is 1/3 atmosphere. You have to remember this one also. I'll show one table or draw one table. Don't confuse with this with all these terms only. Then it is defined with the help of pressure plate apparatus. So pressure plate apparatus ये भी याद रखना है आपको. Then what about permanent wilting point? This concept of permanent wilting point given by Briggs and Sands in 1912. Then they utilized the dwarf sunflower as an indicator plant. तो ये भी क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो है इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? इंडिकेटर प्लांट आपका जो है सनफ्लावर है, ड्वार्फ सनफ्लावर. इसमें थोड़ा भी आपका वाटर का चेंजेस अमाउंट चेंज होता है, उसमें डायरेक्ट जो है इंडिकेट कर देता है एज ए इंडिकेटर प्लांट. एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच वाटर at which plant is no longer obtain enough moisture to meet their requirement and remain wilt unless the water is added to the soil. तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में पूरा प्लांट का डेथ नहीं होता है. तो ये वाला जो सेक्शन है, मान लो ये तुम्हारा विल्टिंग पॉइंट है, ये विल्टिंग पॉइंट है और इस साइड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है. तो ये जो सेक्शन है, इसमें अगर पानी नहीं दोगे तो ये प्लांट नहीं मरेगा, लेकिन अगर वाटर ऐड कर देगा तो फिर उसका जो रिवाइव हो सकता है. जैसे कि इधर बताया ना, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच प्लांट हैज नो लॉन्गर ऑब्टेन्ड एनफ मॉइस्चर टू मीट देयर रिक्वायरमेंट एंड रिमेन विल्टेड अनलेस द वाटर इज एडेड. आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर देन अगेन इट रीगेन्ड टू इट्स लाइफ. देन इट इज द लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर टू द प्लांट. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. The lower limit of water available to the plant is your permanent wilting point, and below this point among the plant not dead but मैं पहले भी बोला था इस पॉइंट पे जो है प्लांट का डेथ नहीं होता है, लेकिन दे आर नाउ परमानेंटली विल्टेड कंडीशन एंड डाई इफ नॉट वाटर इज एडेड. अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप वाटर नहीं दे रहे हैं तो प्लांट का जो है डेड हो सकता है इसमें. तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है, उसके बीच में जो रेंज रहता है वो अवेलेबल वाटर होता है किसके लिए, प्लांट के लिए. एंड सॉइल मॉइस्चर टेंशन at PWP is about 15 bars, minus 15 bar or 15 atmosphere. 15 bar or 15 atmosphere. Then I'll show you one diagram. You have to remember this one. Like this is your soil, like soil surface. Then here you your 0 bar or 0 atmosphere. Then 1/3. Then 15 bar. Then your 30 or 31 bar, then here your 60, then 1000, like 10,000. You have to remember like this. Then what about 0 to 1, 1/3, that is 0.33 और negative 0.33, इसको क्या बोलते हैं आपका? Then the available amount of water is called your gravitational water. Then what about 0.33 to 15 bar? This is called your, this section is called your available water. And here minus 0.33 to 30 bar up to this is called your capillary water.
and beyond this that is your ultimate wilting point, and beyond that 60 that is permanent or over dry wilting point, this one only. Then you have to remember this one 0 bar, 0.33 बार, 15 बार, 30 बार. तो 0 बार से लेके आपका माइनस 0.33 बार का जितना भी इसमें जितना वाटर अवेलेबल रहता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर. देन माइनस 0.33 to 15 bar is your called available water. Then 0.33 to 30 bar is called your capillary water. So remember all these points and all this quantity also, because these questions are asked maximum in the examination. Then next we will see wilting coefficient. What is the wilting coefficient? The percentage of moisture in root zone at permanent wilting point of the plant is called wilting coefficient or critical moisture point. तो पहले से ही बताया था परमानेंट विल्टिंग, ये फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये अवेलेबल वाटर है, और द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द रूट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जितना मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे, विल्टिंग कोफिशिएंट. देन अवेलेबल वाटर क्या है, concept of available water given by Velmier and Hendrickson in 1981. It is the soil moisture available for your maximum plant use. You have to remember this one. It is the soil moisture available for the maximum plant use. तो आपका available water ये इसके बीच में रहता है फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. इन दिस your available water varies and this is the maximum water available to the plant. You have to remember this point. And the portion of the capillary water held between field capacity to the permanent wilting point is your minus 0.3 to 15 bars. It's called your capillary water. जैसे इसमें भी बताया था मैं, कहाँ गया उड़ा है, ये वाला जो है capillary water है. Then next is your ultimate wilting point, the moisture content at which wilting is complete and plant die due to your ultimate wilting point. तो ultimate wilting point क्या है, ऐसा point जिसके बाद plant का मरना मतलब कंफर्म है. तो वो जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट. एंड एट अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट द सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज योर 60 bars. We have discussed and that there also here you can see in 60 bar pressure total permanent wilting point only there or ultimate wilting point. Then what about minus 60 bar? Then the term pH is given by SPL Sorensen only. Then define negative logarithm of hydrogen ion H plus ion and expressed as log 1 by h. then ranges क्या है आपका 0 से लेके 14 तक रहता है. less than 7 is your acidic pH, then 7 is your neutral pH and greater than 7 is basic pH. then pH वैल्यू क्या है, स्कैफोल्ड ने दिया था 1935 में and that is logarithm of centimeter of height of water column. इसका जो है pF मतलब height of water column is called pF and give necessary suction expressed in centimeter, that is your unit is your centimeter only. And this is called your pressure force value. pF value means pressure force value only. And for saturated water pF value is 0, field capacity 2.53. you have to remember pressure also, we have already discussed in the last slide, the diagram. Then permanent wilting point is 4.18 and here pressure is 15. then hygroscopic point 4.50 and here is your 31 is pressure. then oven dry soil is your pF value is 7 and pressure is 10,000. maximum is your oven dry soil, that is pF value is 7 and minimum is your saturated soil, that is water holding capacity is high. saturated soil इसमें जो है saturated soil में water आपका maximum capacity में रहता है, इसके लिए pressure कितना है 0.001. then next is your P value given by silent negative logarithm of electron activity, that is P equals to reduction potential of 0.0591, that is oxidation. It's measure the intensity of your oxidation and reduction. Then measurement of soil moisture. What about the measurement of soil moisture? Two methods are there, that is indirect method and direct method. And in indirect method is basis of tension only, that is tensions means here basis is your tension, that is force only. You think about force only. And these are the following types. तो किस में मेजर होता है, टेंसियोमीटर, then electrical resistance, neutron moisture meter, then pressure member और प्लेट apparatus. तो ये चार है. तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि चार इंस्ट्रूमेंट का नाम ले देगा तो किसी में इनडायरेक्ट मेथड का 3 दे देगा और डायरेक्ट मेथड का 1 दे देगा, तो उसमें पूछेगा
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट इज फ्रॉम डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, तो जिसमें डायरेक्ट रहेगा उसका आंसर आप कर देना। एंड व्हाट अबाउट टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर में क्या है आपका 0.8 बार आपका सॉइल मॉइस्चर प्रेशर इसमें इंडिकेशन देता है। एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी टेंशन, ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना भी इंटरव्यू है वाइवा है ये सब पूछते हैं, टेंसियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, तो कैपिलरी टेंशन एट इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज द सॉइल मॉइस्चर, तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो टेंशन स्ट्रेस कम होता है, ऐसे भी मतलब आम इंसान का भी वही है, प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो टेंशन कम होता है। इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज द सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल मॉइस्चर, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज होगा तो कैपिलरी टेंशन इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द सॉइल मॉइस्चर एंड कंटेंट वाइस वर्सा। देन सुटेबल फॉर द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में मोस्ट सुटेबल है एट फील्ड कैपेसिटी और बिलो इट व्हिच द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर बिलो 1 बार टेंशन, तो इसका भी एक डिमेरिट ये है कि मैक्सिमम इसका जो है 1 बार प्रेशर तक है, उससे अगर ज्यादा होगा तो ये सुटेबल नहीं है, मतलब रीडिंग नहीं दे पाता है। देन नॉट सुटेबल फॉर योर क्ले सॉइल, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन आल्सो, क्ले सॉइल चिपचिपा रहता है तो उसमें ज्यादा ठीक से रीडिंग नहीं आता है। देन टेंसियोमीटर आर वेरी यूजफुल इन शेड्यूलिंग इरिगेशन टू द फ्रीक्वेंटली इरिगेटेड क्रॉप, फ्रीक्वेंटली इरिगेटेड क्रॉप के लिए ये बेस्ट यूजफुल है। देन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और जिप्सम ब्लॉक, इसमें क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्लॉक रहता है उसका प्रेशर और करंट डिफरेंस को लेकर इरिगेशन होता है, जैसे कि जिप्सम ब्लॉक और कंटेंट मेड अप ऑफ जिप्सम फाइबर ग्लास बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये भी याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, प्रिंसिपल सबका याद रखना है, प्रिंसिपल ये सब याद रखना है, जैसे कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा कब, जब मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता है, एंड बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो रेजिस्टेंस एट द फील्ड कैपेसिटी एंड हाई एट द पीडब्ल्यू पॉइंट, तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कब लो रहता है, जैसे कि फील्ड कैपेसिटी में लो रहेगा और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में हाई रहता है, तो विल्टिंग पॉइंट में ऑब्वियसली हाई रहेगा क्योंकि उस टाइम जो है ज्यादा डेफिसिट रहता है वाटर का। जिप्सम ब्लॉक रिफॉर्म्स परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरी मेजरमेंट इन ड्राई सॉइल ओनली, ड्राई सॉइल में इसका जो है मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है। नॉट सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल और सॉल्ट सॉइल एज इंक्रीज द सॉइल कंडक्टिविटी, तो इसमें सलाइन सॉइल में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी ये सब बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट होगा तो कुछ सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन ये सब देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या करेगा जैसे कि उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देता है तो आयन जो है फ्री आयन का कंटेंट बढ़ा देगा, तो उसमें रीडिंग फ्लक्चुएशन होता है। इट इज यूज्ड फॉर योर मेजरिंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन अप टू 0 to 15 बार्स एंड फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ डिलेट इंटरवल, से डिलेट इंटरवल के लिए जो है मैक्सिमम यूजफुल है। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रिएंट मॉइस्चर मीटर, ये जो है विद इन द फील्ड यूज होता है, within the field and within the soil only, rapid method used for the field or in situ measurement, in situ मतलब within the soil moisture from the large volume of the soil based on the measurement of number of H plus nuclei present in a volume, unit volume of soil, तो जैसे कि ये कुछ यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कुछ ब्लॉक ले लिए, तो उसमें जो है ये न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर जो है डाला जाएगा, तो उसमें जितना हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है उसका इंडिकेशन को लेके ये मॉइस्चर कंटेंट बताता है आपको, तो ये आपको याद रखना है, एच प्लस आयन कंटेंट को लेके बनाता है, मेजरमेंट करता है। देन ग्रेटर द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मोर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट, तो हियर आल्सो ग्रेटर द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन में एच प्लस आयन भी रहता है, ओ एच माइनस आयन, तो एच प्लस जितना रहेगा उसमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज विल बी स्लो डाउन एंड वाइस वर्सा, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन आल्सो, ग्रेटर द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल more is the number of nutrients which will be slow down and vice versa only. Then this is the best method at present available for the quantity estimation of charges in the soil moistures and present value the quantity of estimation of changes in the soil moisture, this is the best method, you have to remember this one also, soil moisture meter is the best method for the estimation of the changes in the soil moisture. Then pressure member or pressure plate method, this is generally used in the laboratory only. Then here estimating field capacity, permanent wilting point and moisture content at different pressures, and it is suitable for soil moisture tension up to 0 to 15 bars only. If you remember this one also. Then soil moisture characteristic curves, तो ये वाला याद रखना है आपको, सैंडी सॉइल के लिए एल शेप्ड है एंड क्ले सॉइल के लिए आई शेप्ड है, तो आई शेप्ड वाला ऐसा रहेगा, तो ये जो है आपका क्ले सॉइल के लिए है। एंड द कर्व्स ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी स्टेटस ऑफ द वाटर दैट इज टेंशन एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल ओनली, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक क्रॉप्स, तो ये जो है दो सैंडी सॉइल के लिए जो आपका एल है और क्ले के लिए जो है आई शेप है, ये दोनों आपको याद रखना है।
देन व्हाट अबाउट इवापोट्रांसपिरेशन? इवापोट्रांसपिरेशन पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे. Evaporation means removal or loss of water from your soil surface, and transpiration means from crop part or plant part, that is your leaves, it's called transpiration. And the mixing of both or simultaneous loss of water from your soils and leaf surface is called evapotranspiration. And 99% आपका लॉस किसके थ्रू होता है? इवापोट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है. आपका डेली जितना भी वाटर दोगे उसका 99% आपका इवापोट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है. देन व्हाट अबाउट पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन गिवन बाय कॉन्सेप्ट फनवेट? ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. Evapotranspiration occurs when the ground is fully or completely covered by actively growing vegetation or no limitation of the soil moisture. तो ये चीज याद रखना है. पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन कब होता है? पर ग्राउंड इज फुल्ली कवर्ड और फुल्ली और कंप्लीटली कवर्ड बाय एक्टिवली ग्रोइंग वेजिटेशन. जैसे कि कुछ हाई ग्रोइंग क्रॉप्स है, उस टाइम में जो है क्रॉप ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा, तो उससे ट्रांसपिरेशन लॉस होता है. और सॉइल में जितना मॉइस्चर कंटेंट होता है उसमें भी ज्यादा आपका लॉस होता है, तो उस टाइम ग्रोइंग डायरेक्ट फुल्ली कवर्ड ग्रोइंग वेजिटेशन में ज्यादा आपका इवापोट्रांसपिरेशन होता है. तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन. देन पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज द अपर लिमिट ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन फॉर अ क्रॉप इन अ गिवन क्लाइमेट. ये भी देख लेना, ठीक है. देन नेक्स्ट अबाउट व्हाट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन? तो ये इंस्ट्रूमेंट याद रखना है, लाइसीमीटर. इट कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, लार्ज कंटेनर इंस्टॉल इन ए क्रॉप फील्ड मेजरिंग द वाटर लॉस. तो ये फील्ड में इंस्टॉल होता है इसको. Evapotranspiration and leaching losses can be measured by your lysimeters and soil measure depletion studies. ये जो है डिप्लीशन, soil measure depletion study, ये जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है. डिप्लीशन D इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इनटू D. D is your depth and dB is your bulk density dV and PW is permanent wilting point. You have to remember this formula. The soil moisture depletion studies formula only. Then what about your evaporation data? Evapotranspiration can be measured by your USWB. USWB का फुल फॉर्म किसी को पता है तो बताओ. यूनाइटेड स्टेट वेदर बोर्ड क्लास A ओपन पेन इवापोरीमीटर. दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. क्लास A पेन ओपन पेन इवापोरीमीटर इज गिवन बाय योर USWB, United States Weather Board, and it is the standard evaporimeter most widely used in agromedical observation only. You have to यूज इन एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड्स. एंड इसका क्या है? डायमीटर जो है, डायमीटर 120 सेंटीमीटर. डायमीटर इज योर 120 सेंटीमीटर. एंड डेप्थ आपका जो है 25 सेंटीमीटर. डेप्थ इज योर 25 सेंटीमीटर. फील्ड विथ वाटर अप टू 20 सेंटीमीटर. तो इसमें जो है आपका 20 सेंटीमीटर तक जो है वाटर लेवल, वाटर फील्ड रहता है. 25 सेंटीमीटर इसका डेप्थ है और डायमीटर कितना? 120 सेंटीमीटर. तो इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड में यूज होता है. क्लास से पेन इवापोरीमीटर राउंड टाइप का एक रहता है, कुआं टाइप का, वेल टाइप का. ये आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकल जब किए होंगे एग्रोनॉमी में. देन इट इज पेंटेड व्हाइट एंड इवापोरेशन इज एक्सप्रेस एज mm पर डे. तो इसका इवालुएशन का यूनिट क्या है? आपका इवापोरेशन यूनिट मिलीमीटर पर डे. कितना मिलीमीटर पर डे वाटर लॉस हो रहा है इसमें ये बताता है. देन व्हाट अबाउट सनकन स्क्रीन पे इवापोरीमीटर डेवलप्ड बाय शर्मा एंड दस्ताने इन 1968. एंड दस्ताने इज योर आई थिंक फादर ऑफ irrigation, drip irrigation or something like that. We have discussed previously. You have to see that video. And it is used to measure the evaporation. It is evapotranspiration under the field conditions. Then it is determined by PET by PT ratio. Potential evapotranspiration by evapotranspiration ratio, which according to them varies from 0.95 to 1.05. You have to remember this one also. PET by ET ratio is given by your sunken screen evaporimeter and values from 0.95 to 1.05. Then what about potable evaporimeter? It is developed by Israel, developed in Israel in 1984 and measured the evaporation for very short periods. Then consumptive use of water, CU, consumptive use of water, ये क्या है आपका? तो जैसे कि मान लो सॉइल का जो है आपका प्लांट को जो 100% वाटर आप दे रहे हो, 100 लीटर वाटर दे रहे हो, उसमें से आपका क्या है 1 लीटर जो है यूज करके वो ग्रेन फॉर्म कर रहा है, ग्रेन फॉर्मेशन कर रहा है. ये जो यूज इफिशिएंसी है इसको क्या बोला जाता है? कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर. हियर आल्सो यू हैव सीन. Then about 99% of the water loss in plant due to evapotranspiration and only 1% of the water is used in actual metabolic process. तो इसका जो है मेन वैल्यू क्या है? यही इसको बोलते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर.
बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इवापोट्रांसपिरेशन लॉस प्लस वाटर यूज्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। Then what about estimation of PT by AT ratio, potential evapotranspiration by evapotranspiration? Then Penman method developed by Penman in 1950 for estimating evaporation from the free water surface like ponds, ये सब में, and it is the most accurate for the evaluation of ET0, and it is utilized in the metrological parameter responsible for your ET only. And what about water use efficiency? Water use efficiency क्या है, जितना water use कर रहे हैं कितना efficiently, तो जिसका it is the yield of a marketable crop produced per unit of water used in the evapotranspiration, और water use efficiency क्या है, dry matter produced per unit volume of water used expressed in kg हेक्टर पर mm। तो वाटर का यूनिट क्या है आपका, एरिया क्या है, एरिया का यूनिट हो गया हेक्टर, जो कितना हेक्टर में कितना mm वाटर यूज कर रहे हैं और कितना इसमें ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है या ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आपका वाटर यूज एफिशिएंसी बोला जाता है। Then what about water use efficiency are of two types, that is crop water efficiency and field water efficiency। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। तो क्रॉप वाटर एफिशिएंसी में इसको जो है यील्ड देखा जाता है, तो यील्ड बाय इवापोट्रांसपिरेशन, and it is the ratio of crop yield Y to the amount of water depleted by the crop in the evapotranspiration। तो इसका क्रॉप का क्या है, यील्ड बाय इवापोट्रांसपिरेशन। देन फील्ड यूज एफिशिएंसी, इसमें क्या है, Y बाय टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, या टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। इन केस ऑफ योर फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, फील्ड का वाटर यूज एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट लिया जाता है, जैसे कि रेशियो ऑफ द क्रॉप यील्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द फील्ड इज कॉल्ड योर फील्ड वाटर एफिशिएंसी। Then we'll see water efficiency of different major field crop. Finger millets is 13.4 and rice is 3.7 lowest। तो राइस का सबसे लो आपका वाटर यूज एफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि इसका जो है 5000 लीटर for 1 kg of rice production, whereas in ragi, that is finger millets, he only needs just 200 to 250 meter for 1 kg production। So you can remember this thing because this one also asks in maximum examination, that is finger millets का सबसे हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी है, तो इसके लिए जो है इसमें कम वाटर रिक्वायरमेंट भी है, और कम वाटर रिक्वायरमेंट से मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, तो इसका वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा है। वैराज आपका देख पा रहे होंगे इसमें राइस में 5000 लीटर में ओनली 1 kg ऑफ राइस विल प्रोड्यूस, तो इसका लोएस्ट है 3.7। देन पॉल मिलेट्स मेज इज योर 8, sorghum 9, groundnut 9.2, then wheat is your 12.6 only। Then we'll see the terms curing, some terms related to your crops। Then first is curing। curing आपका जो है किसमें देखने को मिलता है, टोबैको एंड टी एंड ओनियन। तो curing मतलब which you know is leaf drying process is called curing। Then stripping is used in jute only। Then nipping used in cotton and gram, you have to remember this term because this is directly question you will get in IBPS AFO also in mains examinations। Then what about wrapping used in sugarcane? रैपिंग इसलिए होता है लॉर्जिंग से बचाने के लिए शुगर केन को। देन व्हाट अबाउट क्रॉपिंग, क्रॉपिंग जो है सपोर्ट दिया जाता है बनाना प्लांट को, आप उसमें भी देख सकते हैं, बनियान में भी देख सकते हैं, इसमें क्या है, बनाना प्लांट क्रॉपिंग है। एंड थ्रेसिंग किसमें होता है, शुगर केन में होता है। तो थ्रेसिंग, क्रॉपिंग, निपिंग आप याद रख सकते हैं, एंड क्यूरिंग, दिस आर इंपॉर्टेंट, क्यूरिंग, निपिंग, क्रॉपिंग एंड थ्रेसिंग। So maximum we have to get question from these 4 terms। Then we will see oil percentage in field crops, that is maximum oil percentage you will get from coconut 60% and least you can get from soybean। but soybean का सबसे प्रोटीन कंटेंट मैक्सिमम रहता है, that is 42%। ये चीज याद रखना है, 42 प्रोटीन% है और इसका ऑयल परसेंट 20% है। देन रेपसीड एंड मस्टर्ड इज योर 33 to 39% एंड सनफ्लावर इज योर 24 to 36%। castor is your 35 to 58%, groundnut is 45%, then sesame is your 46 to 52%, maximum is your coconut 60% and soybean least, that is 20%। Then what about protein contents in cereals? Rice you will get 6 to 7%, this is in white rice only, white rice or brown rice, brown rice I think। then in maize 10%, bajra is your 11 to 12%, then wheat you will get gluten protein, that is 11 to 12%, sorghum 10 to 12%, barley you can get 11.5%, then protein content in pulse you can get
in gram 21.1% and in P 22.5%, moong 25%, cowpea 23.4%, lentil 25%, arhar you can get 21 to 25, urd you can get 24%, and cowpea को आपको ये बोला जाता है वेजिटेबल मीट, ये पता होना चाहिए. Then protein content in oil seeds, 42% protein content we have discussed previously. Samam 18 to 20%, sunflower 40 to 45%, and groundnut 26%, linseed 36%. Then we'll see classification of crop based on family. तो जितना आपका ग्रास फैमिली है ये सब जो है ग्रामीणी फैमिली के आता है पोआशी के अंदर, including cereals also. Then leguminaceae, all your pulses, groundnuts, methi, alfalfa, bersam, sonham, ये all under comes under leguminaceae or peperinaceae. Then solanaceae is your brinjal, tomato, potato, chili, tobacco, all comes here solanaceae. Then crucifery, cabbage, cauliflower. Then cucurbitaceae, all gourds, that is cucumbers, pumpkin. Then malvaceae, cotton and bhindi. Then Asteraceae compositae, sunflower, safflower, niger. And Chenopodiaceae is your sugar beet. You have to remember this one also, Chenopodiaceae, or spinach. Spinach in 2023 they have asked in men's question, AFO men's question. And I think in SC also they have asked in National Seed Corporations. Both they have asked this spinach. Then Euphorbiaceae, your custard and tophica. Then Convoluaceae is your sweet potato. Then coriander and cumin and carrot, umbelliferae. Then garlic and onion, that is Eliaceae. Allium cepa is your onion, scientific name. Then Gingiveraceae is your ginger and turmeric. You have to remember all these family names and their examples. This is important from your exam point of view only. Then unit 10 we'll see Paddy. I think some time is there, okay, 20 minutes. और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार. विश्व साई से गुड इवनिंग सर. ओके, गुड इवनिंग. यूट्यूब वाला भाई कोई कमेंट, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, और अदरवाइज विल स्टार्ट राइस देन बिकॉज़ वी हैव टू कंप्लीट फास्ट. और जो लोग भी देख रहे हो एक बार बाकी स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म कर दो भाई, बाकी लोग भी जुड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा इसमें. लाइव सेशन में जितना मजा आता है बाकी इतना बाद में वीडियो देखोगे इतना मजा नहीं आएगा फिर. सो विल स्टार्ट राइस क्रॉप प्रोडक्शन वन बाय वन. So first we'll see Paddy, your rice, that is 2n is your chromosome number, 2n equals to 24. Oryza sativia is your scientific name. Then you can see more than 60% of the world population eat rice, that is staple food is rice. And most people in Southeast Asia, about 90%, they grow rice and world produced and consumed in Asia only. 90% of the Southeast Asia people consume rice only. And this is your tropical climate and humid region crops. That is, humid regions means subtropics and tropicals. That means tropical and subtropical region maximally they will grow rice only. And India rice occupies the first position among the cereals in respect of both area and production. तो ये चीज आपको याद रखना है. ये आपका इंडिया में जो है राइस एरिया और प्रोडक्शन में मैक्सिमम है, मतलब फर्स्ट पोजीशन है. और राइस कंटेंट्स लेस देन 6 to 7% in white rice. Protein content is your 6 to 7% and 7.9% in brown rice. You have to remember 7.9% in brown rice and contains 2 to 2.5% fat is lost during milling. तो मिलिंग आपका जो है हॉक्स रिमूवल, ये सब मिलिंग हुलिंग बोलते हैं. हुलिंग परसेंटेज रिमूवल ऑफ हस्क इज कॉल्ड हुलिंग. इसमें क्या है आपका 66% और 2/3 of the paddy only. Then in general cereal crops require 400 to 500 liters of water. Production of 1 kg of dry matters, but you have to remember this one only. राइस के लिए जो है आपका 5000 लीटर पर 1 kg of राइस ग्रेन प्रोडक्शन. This is most important because for my interview also they will ask this one also in IRR. Then in rice field, to prevent denitrification and leaching losses, fertilizer should be incorporated in the reduced zone so that the process of nitrification is delayed. What is a reduced zone and oxidized zone? Oxidized zone is up to your 10 mm of soil surface. तो ऊपर से 10 mm आपका जो है ऑक्सीडाइज जोन है जिसमें आपका ऑक्सीजन रहता है, और 10 mm से नीचे जो है रिड्यूस्ड जोन बोला जाता है इसको. तो इसमें क्या किया जाता है, इस फील्ड में आपका डीनाइट्रिफिकेशन लीचिंग लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपका जो है प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन डिले किया जाता है. तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड द राइस फील्ड सबमर्ज इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर, स्टेगनेंट वाटर चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए.
बेनिफिशियल है आपका स्टैंडिंग वाटर चाहिए किसमें, राइस फील्ड में तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ रहता है किसका, आपका वाटर का. Then rice grain relatively rich in lysine and 4% of the total protein fraction, and the main protein found in rice is originin, and propanil, that is stamp F34, is the most widely used post-emergent herbicide in rice. You have to remember this one also. Post-emergence herbicide in rice is your propanil only, that is stamp F34. If you are going for interview in private that companies or something like that, you will get maximum question, this type of question only, like post-emergent herbicide, pre-emergent herbicide. We will ask that one also, and you will say, remember one thing also, that you came to know that golden rice में आपको पता होगा इसमें विटामिन ए देखने को मिलता है, और विटामिन ए में क्या रहता है आपका, ट्रिप्टोफैन कंटेंट ज्यादा रहता है. ट्रिप्टोफैन क्या है, एक एमिनो एसिड है. तो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड जो रहता है उसमें येलो कलर ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए विटामिन राइस का कलर भी जो है गोल्डन है. तो इसको जो है गोल्डन राइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका कलर जो है थोड़ा येलोइश रहता है, पीला टाइप का रहता है. तो ये जो है गोल्डन राइस बोला जाता है, विटामिन ए, प्रिकसर, ट्रिप्टोफैन, ये सब. देन एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल सी, ये एरिया फास्ट रीच और इन वर्ल्ड, मैक्सिमम जो एरिया प्रोडक्शन होता है आपका इंडिया में, देन चाइना, देन इंडोनेशिया, देन प्रोडक्शन फास्ट रीच और प्रोडक्शन, फास्ट पोजिशन in terms of production is your China, then India, then Indonesia, then productivity means for unit area high productivity is your USA, then Japan, then China. तो आपका हमारा इंडिया में ज्यादा एरिया है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि लैंड रिफॉर्मेशन हो गया या लैंड मैनेजमेंट, ये सब ठीक से नहीं करते हैं फार्मर्स, क्योंकि ओल्ड मेथड ये लोग यूज करते हैं, और बाकी ऐसे ये सब में अच्छा टेक्नोलॉजी है तो वो लोग एडवांस फार्मिंग यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं. इन इंडिया आपका वेस्ट बंगाल, then UP, then Bihar, production is also West Bengal, UP, then AP, and in Punjab productivity is highest because here water irrigation field also maximum in Punjab only. Then here productivity is 34 quintal per hectare only. Then we'll see classification. Out of 24 species, there are 2 species are cultivated species, that is Oryza sativa, and another is your this one, Oryza glaberrima. तो ओरिजा सेटाइवा का भी थ्री डिफरेंट टाइप्स है. ओरिजा सेटाइवा, इंडिका, जापोनिका, जापानिका. तो इसका डिफरेंस भी पूछता है, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम में आपका बीएससी एग्रीकल्चर में, तो डिप्लेट इसमें 2:24 ये 3 मेन ज्योग्राफी के प्लेसेस. तो इसमें क्या है, जैसे कि ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एरिया में देखने को मिलता है इंडिका वैरायटी, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय tall stature and weak stems. Stem is weak, elongate grains and droppy leaves, low productivity and irresponsive to the high input condition. You have to remember this one also. Tall and weak stem. और इसमें क्या है, इंडिका is grown in your tropics and subtropics area, but japonica is grown in your temperate and subtropical region. You have to remember, like Japan, that's why japonica only. Characterized by short stature with sturdy stem and narrow erect dark green leaves, responsive to the intensive input condition, having productivity or grain shape. Then what about Javanica or balu rice? That is grown in Indonesia. A new tiller's wild form of rice has many ons and long duration of the crop periods. तो ये वाला जो है many ons है, और wild form of rice is जो Javanica. You have to remember this one also, wild form of rice, and grow in Indonesia. Then what about glaberrima? Grown in West Africa and Indo-Burman region, is your origin of rice, that is Southeast Asia. And rice is self-pollinated crop. This one also most important, self-pollinated crop only. And fruit type is your caryopsis. You have to remember this type also. This one also. Your fruit type is your caryopsis. Then grain or caryopsis is tightly enclosed by lemma और पेलिया, और दोनों को मिला क्या बोलते हैं, हॉल बोला जाता है, हुल. टेस्ट वेट क्या है, 1000 ग्राम्स का लिया जाता है, 25 ग्राम. Then rice stem commonly called hilum and called made up of series of node and internodes. तो ये अगर राइस प्लांट है, ये नोड हो गया, तो ये दोनों नोड के बीच इंटरनोड रहता है, ये आपको याद रखना है. इन्फ्लोरेसेंस क्या है, पेनिकल बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, राइस का इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोला जाता है. देन व्हाट अबाउट क्लाइमेट? C3 plant is your rice is your C3 plant. Short day plant also require both hot and humid climate. Hot and humid climate. Then what about soil?
Clay and clay loam are the best suitable for your rice cultivation. Clay loam and clay soil is the best for rice cultivation. Then acidic soil good for rice cultivation. Most suitable pH ranges between 4 to 6. This one also you have to remember. Then average soil temperature is 21 to 37 degrees Celsius. This one asked in this year paper only, 2024 NSC paper, National Seed Corporation Trainee Agriculture. Then in India, most the rice cultivated in lowland condition only. Then rice is semi-aquatic plant grown best under submerged condition. Under this condition, oxygen transported through एरेनकाइमेटर टिश्यू. तो ये भी याद रखना है, तो लीफ में जो एरेनकाइमेटर टिश्यू रहता है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, राइस प्लांट में. सीजन के हिसाब से भी ये 3 टाइप का है, जैसे कि ऑस है. ऑस का जो है सोइंग टाइम कौन सा है, अप्रैल में है. देन खरीफ और अमन सीजन में क्या है, जून जुलाई में सो किया जाता है. बोरो और स्प्रिंग में जो है नवंबर दिसंबर में सो किया जाता है. इन नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ओनली अमन और खरीफ क्रॉप टेकन ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द टेम्परेचर इन विंटर. तो ये भी आपको याद रखना है, सीजन के हिसाब से 3 टाइप्स का है. ठीक है. देन वेराइटीज, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी डेवलप्ड is your TN1 in Taiwan in 1964-65, and fast high yielding dwarf variety in the world is your IR8 by crossing Peta and DGO Ujen. You have to remember this one also. Fast dwarf variety of rice कौन सा IR8 है, और फास्ट dwarf variety डेवलप इन द वर्ल्ड इज योर TN1. और ये जो है IR8 ये आपका कहाँ कौन रिलीज किया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपाइंस में है, मनीला फिलीपाइंस, 1966 में. एंड लिटरल मीनिंग ऑफ DGO Ujen इज योर ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड. ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, ये आपको याद रखना है. देन फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया व्हिच Tachung native 1 TN1, that this one only from Taiwan, that is TN1 1964. Then IR8 is the second introduced variety in India from IRI Manila Philippines in 1966. तो ये हो गया वर्ल्ड का. हमारा इंडिया का कौन है, फर्स्ट इंडियन वैरायटी आपका जो है हाई यील्डिंग वैरायटी अर्लीस्ट सेमीडो वैरायटी जया. दिस यू हैव टू रिमेंबर, जया ओनली रिलीज्ड इन 1968, evolved by Dr. Shastri. Dr. Shastri is called father of हाइब्रिड राइस इन इंडिया एंड फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड. वो कौन है बताना है आपको कमेंट सेक्शन में. ठीक है. जितना हमारा इसमें भी है कोई बताएगा तो well ping only. Then it is the good yielder as compared to TN1 and IR8, both hence called miracle rice of India. मिराकिल राइस इन इंडिया. तो जो है क्या है आपका मिराकिल राइस ऑफ इंडिया है. और ये जो बना था आपका किस किस के बीच में क्रॉस था, TN1 एंड टाइप 141 को क्रॉस करके जया बनाया गया था. ठीक है. एंड कटक उड़ीसा ने भी 2 वेरायटी डेवलप किया था, मैलिंगा एंड माउसुरी. देन म्यूटेंट वेरायटी ऑफ राइस इज योर जगन्नाथ एंड सतारी. ये भी आपको याद रखना है, म्यूटेंट वेरायटी ऑफ राइस. देन नेक्स्ट इज योर वेरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग इज योर बाला ओवरी एंड नागिना 22 एंड पूसा 221. देन आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट वेरायटी कौन सा है, PKM 6. देन सेलेटेड टॉलरेंट इज योर IR8 एंड लुनिश्री. लुनिश्री को आपका जो है सुपर राइस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है. ये लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था 7 या 8 लेक्चर में शायद. और कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि हम लोग को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारा यूट्यूब चैनल में जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है नीम राज सुंदा एग्री सीरीज का, उधर आप जाके चेक कर सकते हो. और बाकी लोग जितना भी देख रहे हो थोड़ा शेयर कर दो, बाकी लोगों को भी पता चले ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए. एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली क्लास. देन सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरिया इज योर जलमगन एंड जलमनी. Then what fast hybrid basmati rice is PRH10. Then fast hybrid rice in India is URH1. ये कहाँ से डेवलप हुआ था, कोयम्बटूर, केवी के कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर, इसलिए जो है CO इसमें ऐड किया गया है, कोयम्बटूर से ले आके CO इसमें ऐड है. और हाइब्रिड राइस है तो इसलिए RH1. और APRH1 भी है, वो भी है. DRR और ये सब मिलके बनाए थे. हमारा जो IRI जो है IRR, इसमें भी ये कंट्रीब्यूशन दिया था. देन वैरायटी ऑफ रिलीज्ड फ्रॉम IRI इज नोरिन 8, 18, पूसा 221, बासमती 370, पंकज IR20. देन पूसा 1, पूसा बासमती 1 इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड फास्ट हाई यील्डिंग वैरायटी अंडर हाई क्वालिटी राइस हैज बीन डेवलप्ड बाय IRI थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग. देन अदर वैरायटी इज योर पद्मा फॉर द अपलैंड राइस. देन पंकज ये जो वाटर लॉक्ड. देन रत्ना एंड चंबल, सीता, Sabarmati. These all are the other varieties of rice you have to remember. Then seed rate for broadcasting you have to use
100 kg per hectare, drilling 60 kg per hectare, then hybrid rice 15 kg per hectare. You have to remember this one because this question asked maximum times in examinations. Then Depak method इसमें क्या है 1 to 5 kg per meter square ये एरिया के हिसाब से. Then row to plant distance ये सब जो है 20:10 ये सब डिस्टेंस है. Then fertilizer मैनेजमेंट क्या है आपका NPK रेशियो 10:60 है. 25 kg जिंक सल्फेट जड़ेना सपोर्ट दिया जाता है फॉर लास्ट पॉटलिंग. जनरली रिकमेंडेड फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए जड़ेना सपोर्ट दिया जाता है. वाटर लॉक्ड कंडीशन में जैसे कि पडल्ड राइस है डेवलप टू जोन्स दैट इज अपर जोन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज जोन, अपर जोन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज जोन एंड लोअर जोन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड जोन and upper is called oxidized zone. We previously discussed also. Past 10 mm is called your oxygen zone and 10 mm beyond the 10 mm is called your reduced zone which contains no oxygen. That's why called reduced. और इसमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन कंटेंट रहता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है ऑक्सीडाइज्ड जोन बोला जाता है. Use of nitrogen fertilizer in paddy fields should avoided due to more susceptibility or loss of nitrogen through leaching and denitrification. लीचिंग क्या है आपका न्यूट्रिएंट के साथ सॉल्ट ये जो है पार्कुलेशन और डाउनवर्ड मूवमेंट होकर सॉइल रूट से नीचे चला जाता है, उसको क्या बोला जाता है लीचिंग बोला जाता है. और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट थ्रू वाटर, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड लीचिंग. डीनाइट्रिफिकेशन क्या है आपका नाइट्रोजन लॉस होता है और NO3 जो है कन्वर्ट होकर N2 जो है फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन. Hence, in low length and deep placement, ammonical form of nitrogenous fertilizer is used in reduced zone and has been proved that efficient method of nitrogen application in this method. और एक चीज है आपको एमोनिकल फॉर्म मैक्सिमम यूज होना चाहिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर किसमें राइस में, लेकिन एमोनिकल फॉर्म यूज नहीं करते हैं मैक्सिमम लोग. क्या है नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं. तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर आपको जो है अगर यूज कर रहे हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर मतलब NO3 वाला कुछ फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं तो इसको जो ऑक्सीडाइज लेवल पे देना है, ऑक्सीडाइज जोन है उसमें देना है, मतलब 1 to 10 mm के बीच में ही देना है सॉइल सरफेस का. और आप अगर एमोनिकल फॉर्म दे रहे हैं तो ये रिड्यूस्ड जोन में देना है, रिड्यूस्ड जोन में देना है इसमें. तो रिड्यूस्ड जोन में कौन सा है बियॉन्ड योर 10 mm इसका रिड्यूस्ड जोन जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है आपका. और इसमें ऑक्सीडाइज जोन में क्या है ऑक्सीजन रहता है. तो ये आपका जो है नाइट्रेट फर्टिलाइजर इसमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यूज करते हैं एमोनिकल फॉर्म जो है ज्यादा ये सब होता है. नाइट्रोजन efficiency in rice is your 30 to 40%. You have to remember this one also. Nitrogen efficiency in rice is 30 to 40%. Then biological nitrification, Anabena, Azolla, that is blue green algae, Anabena azolla and Azotobacter non-symbiotics, nitrogen fixing bacteria fix your atmospheric nitrogen biologically in upland rice. और algae इसमें यूज होता है बायो फर्टिलाइजर के तौर पे. That is 25 to 30% क्या है ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है किसमें राइस में. कायरा डिजीज क्या है जिंक डिफिशियंसी के सिम्टम्स से जो है कायरा डिजीज होता है. इसमें क्या है सिम्टम्स आप देख सकते हैं अपीयरेंस ऑफ रस्ट, कलर एंड ब्राउन रेड कलरेशन ऑन द लीफ सरफेस ऑफ आउटर लीव्स. जो फास्ट रिपोर्ट किया कौन किया था वायल नीम ने पंतनगर उत्तराखंड में. मैनेज कैसे करोगे 5 kg जिंक सल्फेट जेडानएसओ पर 5 kg पर हेक्टर नर्सरी स्टेज में दिया जाता है इसमें, ठीक है. और फोलिया स्प्रे में क्या करोगे 0.5% जिंक सल्फेट 0.5% जिंक सल्फेट अप्लाइड टू द अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप्स ओनली. एंड जिंक डेफिशिएंसी क्या है टिप ऑफ द जिंक डेफिशिएंट लीव्स फास्ट बिकम येलो देन ड्राई एंड देन प्लांट बिकम स्टंटेड. ये भी पॉइंट मैक्सिमम मोस्ट इंपोर्टेंट है. दिस इज सो मच इंपोर्टेंट. दिस टिप ऑफ द जिंक डेफिशिएंट लीव्स फास्ट क्या करेगा जैसे कि जिंक डेफिशिएंसी होगा तो येलो होगा, येलो के बाद ड्राई होगा और फिर स्टंटेड ग्रोथ में चला जाता है वो. देन ब्राउनिंग ऑफ राइस किस लिए होता है आयरन टॉक्सिसिटी के लिए होता है. ब्राउनिंग ऑफ राइस एंड मेजर प्रॉब्लम टू द राइस प्रोडक्शन इन वाटरलॉक्ड कंडीशन के लिए होता है. एसिड सल्फेट एंड यूटिसॉल एंड ऑक्सीसॉल इन द सॉइल ऑर्डर. देन द बिगिनिंग ऑफ द राइस टॉक्सिसिटी केसेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है अपीयरेंस ऑफ द पर्पल कलरेशन एट द टिप ऑफ द लीफ टिप्स एंड फाइनली हैज स्क्रोच्ड अपीयरेंस. तो लिप टिप में क्या होगा पर्पल कलरेशन देखने को मिलेगा और स्क्रोच्ड अपीयरेंस रहता है. और फाल्गुना वैरायटी क्या है आपका आयरन टॉक्सिसिटी टॉलरेंस है तो उसके लिए इसको ब्राउनिंग राइस से बचने के लिए ये वैरायटी मैक्सिमम यूजफुल है फाल्गुना. देन सिलिकॉन राइस क्या है इसमें सिलिकॉन रिगार्डेड एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन. सिलिकॉन डेफिशिएंट प्लांट आर सॉफ्ट एंड ड्रॉफी और सिलिकॉन सप्लाई मोस्टली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पेनिकल इनिशिएशन. पेनिकल मतलब जो फ्लावरिंग स्टेज और इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है राइस का पेनिकल बोला जाता है. देन पेनिकल इनिशिएशन स्टेज बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज रूट एक्टिविटी रिलेटिवली रिड्यूस्ड. रूट एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है. द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ आल्सो है.
रेट ऑफ ट्रांसमिशन हाई हो जाता है इसमें. देन इट हैज बीन नोटिस दैट, वेट वन सेकंड, then it has been noticed that silicon provided a thick cuticle silica layer which is function as barriers against attack by your insect pest only. तो इसमें क्या है, सिलिकॉन प्रोवाइड नहीं करोगे तो सिलिकॉन प्रोवाइड करने से क्या होता है, एक थिक क्यूटिकल लेयर बना देता है किसका, सिलिका का, barrier against your insect pest. Silicon deficiency can be corrected by the application of your basic slag that is 1.5 to 2 टन पर हेक्टर. बेसिक स्लैग यूज होता है सीए. बेसिक स्लैग का फंक्शन, ये फॉर्मूला आप देख लेना. बेसिक स्लैग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ योर कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3 आई थिंक, ये एक बार देख लेना. देन वीट मैनेजमेंट क्या है, वीट मैनेजमेंट ई कन्या क्रैश गैली है, बर्न यार्ड ग्रास, और मेरा प्रोजेक्ट भी उसी के ऊपर चल रहा है. हम लोग का प्रोजेक्ट जो है बियर क्रॉप की तरफ से, ड्राई लैंड, ये हमारा ट्रांसप्लांटेड राइस इसके ऊपर. तो इसमें जो है इकन्या क्रैसगेलियन, इकन्या कोलोना, वाइल्ड राइस आर द मेजर वीड्स इन द राइस. वाइल्ड राइस ये जो है उसका मिमिक्री ये है. एंड दिस वीड प्रॉब्लम इज लेस इन लो लैंड एंड ट्रांसप्लांटेड राइस एज कम्पेयर टू अपलैंड डायरेक्ट सीडेड राइस. तो डायरेक्ट सीडेड राइस और ट्रांसप्लांटेड राइस, तो इसमें वीड कंडीशन किसमें लो है आपका, ट्रांसप्लांटेड में लो है, और डायरेक्ट सीडेड में ज्यादा रहता है, क्योंकि डायरेक्ट सीडेड में ज्यादा इतना आप ये नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट शो करोगे तो उसमें फील्ड कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाओगे आप ठीक से, और उसमें इतना मेहनत के बाद भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं रहता. लेकिन ट्रांसप्लांटेड राइस में आप पहले नर्सरी में ग्रो करोगे उसको, तो उसमें आप एक अच्छा कंडीशन मेंटेन कर सकते हो. तो इसमें हार्बिसाइड क्या क्या यूज होता है, बेंथियोकार्प सर्चन 2 kg पर हेक्टर, 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर अप्लाई टू द प्री इमरजेंस. तो प्री इमरजेंस जो है बेंथियोकार्प, ये सब यूज होता है. प्रोपानिल स्टाम्प F34, ये जो है आपका फास्ट वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और पोस्ट इमरजेंस वीट है, तो ये भी याद रखना है. पोस्ट इमरजेंस वीट आपका भी प्रोपानिल है. एंड ब्यूटाक्लोर और मैचेट 2 to 3 kg पर हेक्टर यूज्ड फॉर प्री इमरजेंस वीट और वीट हैविंग नॉट इमर्ज इन द फील्ड, जिसमें फील्ड इमर्ज वीट जो है इमर्ज नहीं हुआ होगा फील्ड में, उसमें जो है ब्यूटाक्लोर दिया जाता है. इट इज इफेक्टिव टू कंट्रोल बोथ एनुअल ग्रासेस एंड ब्रॉड लीफ एज प्री इमरजेंस वीट बिकॉज इमर्ज्ड वीड्स आर नॉट किल्ड. तो इसमें जो है इट इज इफेक्टिव टू कंट्रोल बोथ एनुअल ग्रासेस और ब्रॉड लीफ BLB, ब्रॉड लीफ वीड्स, ब्रॉड लीव्स एज प्री इमरजेंस वीड्स बिकॉज इमर्ज वीट आर नॉट किल्ड. तो ये दोनों के लिए यूज होता है प्री इमरजेंस, आपका एनुअल ग्रासेस और ब्रॉड लीव्स के लिए कौन सा यूज होता है, ब्यूटाकोल, इसको आपको याद रखना है. देन एनिलोफास, इसको क्या है, प्री इमरजेंस वीट है. एंड अर्ली पोस्ट इमरजेंस सिलेक्टिव हार्बिसाइड यूज्ड कंट्रोल ऑफ एनुअल ग्रासेस, एनुअल ग्रास सेजेस, ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए जो है एनिलोफास है. देन विजनिंग क्या बोला जाता है, इन्वर्स प्लाइंग एंड यंग क्रॉप्स 4 to 6 weeks after the sowing of light country plow 5 to 10 centimeter standing crop once or twice. Purpose to control weeds, optimize the crop strengths and provide soil aeration. तो आपको कंट्री प्लाव पता होगा, कंट्री प्लाव से क्या किया जाता है, इसको प्लाव किया जाता है आफ्टर 4 to 6 week आफ्टर ऑफ सोइंग. तो इसका क्या है, मेन जो रीजन है आपका क्रॉप जो वीट कंट्रोल्स है, ऑप्टिमाइज क्रॉप्स एंड प्रोवाइड सॉइल एरेशन 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में, तो क्या होता है, ब्रूसनिंग बोला जाता है. एंड पॉटलिंग क्या है आपको पता होना चाहिए, सॉइल एग्रीगेट, सॉइल एग्रीगेशन जो है मैकेनिकल फोर्सेस के थ्रू आपका एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट और सॉइल एग्रीगेट को डिस्ट्रक्शन के लिए पॉटलिंग किया जाता है. पॉटलिंग destroy the soil structure which hampers the root penetration and development of succeeding upland crops grown in the rotation of the rice, rotation with rice. And puddling increases bulk density of the soil from 1.4 to 1.7 gram per cc done with equipment known as puddler. तो ये भी आपको याद रखना है, पॉडलिंग के लिए पॉडलर यूज होता है. इसमें मेन फंक्शन क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन करता है और उसमें जो है रूट पेनिट्रेशन बढ़ा देता है, वो भी रूट पेनिट्रेशन हैम्पर करता है. तो इसमें क्या है, डेवलप अच्छे से होगा इसमें, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस पार्कुलेशन लॉस, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, पार्कुलेशन लॉस इसमें है. रिड्यूस वीड इन्फेस्टेशन, वीड इन्फेस्टेशन मतलब वीड रिडक्शन करता है और इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू द प्लांट. देन क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर, दैट इज टिलरिंग स्टेज, इट बिकम 2 to 20 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग यूज होता है. टिलरिंग स्टेज आपका क्रिटिकल स्टेज है. देन बूटिंग स्टेज और लेट पानी के लिए इनिशिएशन स्टेज, स्वेलिंग ऑफ फ्लैग लीफ और सीड इज कॉल्ड बूटिंग. तो बूटिंग के लिए जो है पैनिकल इनिशिएशन स्टेज में ये जो क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज मतलब आप इस
इस स्टेज पे अगर आप पानी नहीं दोगे या इरिगेशन नहीं करोगे तो प्लांट का डेथ हो सकता है। इसको जो है क्रिटिकल स्टेज बोला जाता है। एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन वाटर इन द राइस क्रॉप इज योर बूटिंग स्टेज। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ओनली। बूटिंग जो है सबसे क्रिटिकल स्टेज है। और लेट पेनिकलिंग, पेनिकल क्या है, इसका इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर को क्या बोलते हैं, पेनिकल बोला जाता है राइस में। अगर लेट पेनिकलिनेशन स्टेज जैसे बूटिंग में आपका इरिगेशन नहीं दे रहे तो क्रिटिकल स्टेज है, राइस प्लांट का डेथ का भी चांसेस है। डेपोक मेथड क्या है, डेपोक मेथड क्या है आपका फिलीपाइंस में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड हियर इन दिस मेथड सीडलिंग बिकम्स रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग द 12 डेज आफ्टर सीडिंग। तो जैसे सीड सोन हुआ आफ्टर 12 डेज, और 12वें दिन पे 12 डेज पे क्या है डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है राइस। कंपेराइजिंग राइजेस देन स्टेम्स सीडलिंग विथ आउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सॉइल्स। तो इसमें क्या है नर्सरी स्प्राउटेड जो है हो जाता है 3 kg पर मीटर, और वुडन प्लांट ट्रे यूज होता है इसमें। और आपका 25 to 30 मीटर्स पर नर्सरी एरिया इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टर। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन आल्सो। और इसमें जो है नर्सरी स्प्राउट के लिए जो है पॉलिथीन सीड यूज होता है और प्लैंक यूज होता है, उसमें जो नर्सरी प्रिपरेशन किया जाता है। देन व्हाट अबाउट हाइब्रिड राइस, फास्ट डेवलप हुआ था चाइना में by using CMS, that is cytoplasmic male sterility. After China, India is the second country to become commercialized your hybrid rice, that is APRH1 hybrid rice. First hybrid rice is APRH1, APRH2, KRH1, MGR1. दिस तमिलनाडु APRH1 जो है ये आपका IRR ये डेवलप किया था। जो पहले जो था DRR, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, एंड नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो हम लोग इसमें मैक्सिमम ये इन्वॉल्व थे। तो APRH मीन्स दैट टाइम आंध्र प्रदेश था आपका, तो इसलिए एपी से आंध्र प्रदेश से एपी लाया गया, और आरएच मतलब हाइब्रिड राइस। तो APRH1 आंध्र प्रदेश हाइब्रिड राइस 1, फॉर दैट फुल फॉर्म इज दैट वन ओनली। So APRH1 is your first hybrid commercialized in India, developed by your DRR, that is IRR, and PHB71 is the only hybrid rice which is released by private organization। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। MG1 तमिलनाडु में डेवलप हुआ था, और KRH फ्रॉम कर्नाटका, एंड APRH1 and 2 from AP only, with the help of IRR then IRRI also. Then we'll see golden rice, the term coined by Ingo Potricus. Then beta carotene rich इंसर्टेड इन राइस, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें जो है देखा गया कि विटामिन ए जो है डेफिशिएंसी हो रहा है, तो उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए जो है तो गोल्डन राइस का फॉर्मेशन हुआ था, और इसमें फोर्टिफाइड विटामिन ए राइस कंटेंट जो है इनकॉर्पोरेट किया गया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसका जीएम क्रॉप्स राइस भी बोला जाता है। और इसमें क्या है आपका ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड जो इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो उसके लिए जो है येलो कलरिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। देन एसआरआई सिस्टम क्या है इसका आपका, डेवलप्ड बाय हेनरी दी लोनाले इन मेडागास्कर इन 1980s। तो इसका बेनिफिट क्या है आपका 20 to 100% और मोर इंक्रीज यील्ड। तो आपका 100% तक यील्ड इंक्रीज करता है इसमें, 90% आपका सीड रिक्वायरमेंट रिडक्शन, एंड अप टू 50% वाटर सेविंग। तो मैक्सिमम जो है यूज इंक्रीजिंग यील्ड के लिए क्या जाता है, 90% आपका सीड रिक्वायरमेंट एंड 50% वाटर सेविंग के लिए यूज होता है ये, ठीक है। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसआरआई क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द प्लांट पॉपुलेशन। तो इसका मेन सिग्निफिकेंट क्या है आपका, प्लांट पॉपुलेशन रिडक्शन है। देन इरिगेशन क्वांटिटीज एंड इंप्रूविंग सॉइल कंडीशन इंप्रूव करेगा। इरिगेशन क्वांटिटीज आपका इरिगेशन क्वांटिटी रिक्वायरमेंट जो आपका इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसको भी घटाएगा, मतलब कम करेगा। देन 50% आपका वाटर सेविंग है बाय यूजिंग लेस और नील हार्बिसाइड्स। तो इसमें जो है एसआरआई जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका मेन मकसद और मेन एम और ऑब्जेक्टिव ये था, रिड्यूसिंग प्लांट पॉपुलेशन, इरिगेशन क्वांटिटीज लेस, देन योर इम्प्रूव सॉइल कंडीशन थ्रू लेस और मिनिमम यूज ऑफ हार्बिसाइड्स एंड केमिकल। इज योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर एसआरआई। यू हैव टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आता है और बार बार कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट। And it is your agroecological approach for increasing productivity in irrigated rice by changing the management of plants in soil, water, nutrient cultivating rice, the organic manure as possible। तो ये भी देख लेना। देन एसआरआई एवरेज यील्ड कितना है आपका 6 to 7 टन पर हेक्टर एज कंपेयर टू conventional method, that is 2 to 3 ton per hectare। SRI mainly adopted for irrigated upland rice and rainfed rice। upland and rainfed rice is your जहाँ पे वाटर जो है मैक्सिमम रहता है वहां पे आपका यूज होता है।
एज वेल एज व्हीट, शुगर कैन, मिलेट्स एक्सेट्रा एंड अदर क्रॉप्स में भी यूज होता है, लेकिन एसआरआई जो है सिस्टम आपका राइस में ही फेमस है। एसआरआई इज मोर फिजिबल फॉर द फार्मर हु हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग के लिए एसआरआई सिस्टम जो है फिजिबल है और यूजेबल है, एंड नीड टू गेट हाईएस्ट यील्ड पॉसिबल फ्रॉम देयर अवेलेबल लैंड। जिसका लैंड होल्डिंग ज्यादा है और प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, वो जो एसआरआई सिस्टम यूज करना चाहिए, ठीक है। और इसका स्पेसिंग क्या है, 25 जो है 25 by 25 इसका स्पेसिंग होना चाहिए। और इसमें जो है एडप्टेड एंड ट्रांसप्लांटिंग यंग सीडलिंग ऑफ 2 लीफ स्टेज 8 to 12 days old। नर्सरी एरिया इज 100 मीटर विद एनफ सीड रेट दैट इज 2 kg पर एकड़ और 5 kg पर हेक्टर। यू हैव टू रिमेंबर। तो इसमें क्या है, और एक चीज याद रखना है आपको, एसआरआई में सिंगल प्लान रहता है इस एरिया में, और बाकी सब में जो है बहुत सारा प्लान रहता है। तो एक चीज ये भी याद रखना है आपका, सिंगल प्लान रहता है इसमें। डिमेरिट्स ऑफ एसआरआई इज हायर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है विद इनिशियल शेयर फॉर इंडिविजुअल सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। इसमें ट्रांसप्लांटिंग किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें लेबर इंटेंसिव है, लेबर कॉस्ट ज्यादा लगेगा, ये तो इसका डिमेरिट है। और इसमें वीडिंग के लिए भी ज्यादा लेबर लगते हैं, ठीक है। देन प्रोसेसिंग देख लेते हैं एक बार, राइस खत्म कर लेंगे आज, फिर नेक्स्ट कॉल जो है कल से हम लोग जो है व्हीट देखेंगे। देन व्हाट अबाउट मिलिंग। मिलिंग जो है, पहले तो पॉलिशिंग देख लेते हैं। तो पॉलिशिंग आपको पता होगा, राइस का जो है ये सीड है, तो उसका आउटर लेयर जो है एलिरॉन लेयर रिमूव करने को जो है आपका पॉलिशिंग बोला जाता है। जैसे रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्रांड क्लिंजिंग टू द मिल्ड राइस एंड स्मूथिंग द सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। एंड मिलिंग किसको क्या बोला जाता है, द रिमूवल ऑफ एलिरॉन लेयर एंड एम्ब्रियो आर removed during the polishing of the rice grain is called milling. And there is a loss of vitamin B, particularly thiamine deficiency of which causes beriberi। तो अगर आप मिलिंग राइस खा रहे हैं तो आपका बेरीबेरी होने का चांसेस ज्यादा है विद पॉलिश राइस। ईपीपीसीएस का आपका क्वेश्चन भी था। पैराबोलिंग क्या है आपका, इसमें जो है क्रिस्टलाइन स्टार्च जो है आपका एमरफस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है, तो पता होना चाहिए, गाँव में भी करते हैं। उसको पानी में बॉयल करके धान को जो एमरफस जो रहता है, जैसे क्रिस्टलाइन से एमरफस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, रिवर्सिबल स्वेलिंग एंड फ्यूजन ऑफ द स्टार्च। तो एक चीज भी इसका याद रखना है, प्रोसेसिंग ऑफ राइस का जो है सीक्वेंस पूछता है, मिलिंग, पॉलिशिंग, पैराबोलिंग, ये सब। देन वी विल शो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन regarding your rice only. Then sowing time for the autumn is your April to May. Then sowing time for Boro rice is your November to December. Rice inflorescence is known as पेनिकिल। ये क्वेश्चन पूछता है, राइस इन्फ्लोरेसेंस, आपका राइस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है पेनिकिल। देन राइस इज योर टाइप ऑफ प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ये टाइप ऑफ शॉर्ट डे प्लांट ओनली। देन कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस इज 30 to 32 डिग्री। कार्डिनल टेम्परेचर मीन्स योर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब इतना ऑप्टिमम ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कि इससे कम नहीं। Then cooling percentage is your 65 to 66%. Then fruit type of rice is known as caryopsis. Then widely used nitrogenous fertilizer in rice is your ammonium sulfate. Then pH is your 4 to 6 pH requirement, that is acidic pH only. And met type of nursery is related to Paddy. Then test weight of basmati rice is your 21 gram. In general, it is 25 gram. What is test weight? That is 1000 gram seed weight. And most critical stage of water for rice is your booting stage, that is your post panicle initiation stage. You have to remember, because this is most important question, all related to your rice. Then biofertilizer for your rice is azolla. Then seedling ready for transplanting in depot method is your 11 to 14 days. And most dominant weed species in rice is your echinoclua species, most dominant weed species. You have to remember this one also. White eye of rice is due to your iron deficiency. Then gas emit in the rice field is your methane. You have to remember this also. Methane emission जो है राइस फील्ड में ज्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। Then acachoid disease is your H2S टॉक्सिसिटी। ये जो है कल वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसमें क्या है, वाटर लॉक कंडीशन रहता है। वाटर लॉक कंडीशन है, मतलब पानी जमा हो जाता है। तो इसमें क्या है, सल्फेट मिनरल्स जितना रहता है, या सल्फेट आयन या सल्फेट आपका जितना फर्टिलाइजर है, उससे सल्फेट से क्या वाटर के साथ रिएक्शन करके H2S गैस प्रोड्यूस करता है, उसको टॉक्सिसिटी को क्या बोला जाता है, अकाचोइड डिजीज बोला जाता है। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस क्रॉप बाय योर डीनाइट्रिफिकेशन ओनली। तो इसमें क्या है, नाइट्रेट जो है N2 में एकदम नॉर्मल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। एंड पारा एंड न्यूट्रिया क्रॉपिंग सिस्टम क्लोज रिलेटेड टू योर राइस क्रॉप। देन पाराबॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व विटामिन B12। पाराबॉइलिंग के लिए जो है विटामिन B12 कंजर्व करता है इसमें। एंड सीड रेट आपका जो है 3 to 4
kg per meter square in Deepak method. Area required for seedling preparation is your 25 to 30 meter square in Deepak method. Then miracle rice in India is your JA. Then G responsible for dwarfness is your DG Ujjain. Then spacing is your 20 to 10 centimeter in rice. Then Caradiage is your zinc deficiency. Then reclamation in cereals is due to your copper deficiency. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Caradiage तो भाई हर क्वेश्चन में तुमको, हर एग्जाम में तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा इसका. Then in rice grain is said to be extra lifelong if it is 7 mm or more. एक्स्ट्रा लॉन्ग किसको बोला जाता है? अगर 7 mm से ज्यादा है राइस ग्रेन. ठीक है, तो व्हीट जो है हम कल से देखेंगे. सो अगर किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो. तो मैं अगर कुछ डाउट हो, अगर और किसी का डाउट हो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली आई थिंक. सो थैंक यू. अगर किसी का कुछ डाउट हो यूट्यूब वाला भी, कोई किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हो. अदरवाइज टू एंड ऑफ द सेशन हियर. और मैं ये कोशिश करूंगा कि हर दिन जो है आपका डेली जो है आपका 10 पेजेस का एक टारगेट है हम लोगों का, क्योंकि एग्जाम भी आपका यूपी जीटीए का और ओपीएससी है उड़ीसा वालों का, फिर एमपी एरियो है एग्जाम. तो ये सब का एग्जाम को टारगेट लेके आप पढ़ लोगे मेरे से तो भाई मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, पूरा अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा. और किसी का मतलब और डाउट ही नहीं रहेगा तुमको जो है नीम राज सुंडा से, या जनरल एग्रीकल्चर किसी को नहीं पता है तो पूरा क्लियर करवा दूंगा मैं. ठीक है, सो आपको अच्छा लगा सेशन तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड यू कैन. और आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, मतलब टारगेट देता हूँ 1000 कर दो इसी वीक में या इसी मंथ में, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सके. एंड आपका अगर सेशन अच्छा लगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. आपका कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो. एंड यू कैन जॉइन अस इन व्हाट्सएप. This is our WhatsApp group, and you can join us on Telegram, because in Telegram groups after that this class only I'll provide quiz related to your Neem Raj Sunda, and you can follow us on Instagram and Facebook. और ये वाला जो है हैशटैग एग्री जॉब्स, इसमें जो है जॉब रिलेटेड हम लोग क्वेरी जितना भी है इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसमें जितना भी आपका बाहर से कुछ रिक्रूटमेंट आया या कुछ वैकेंसी आया तो उसमें हम लोग अपडेट कर देते हैं. ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है. तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो है क्विज के लिए ज्वाइन करना है, और ये जॉब्स रिलेटेड के लिए हैशटैग एग्री जॉब्स है. तो क्विज आपको जो है फ्री क्विजेस इसमें मिल जाएगा. अभी लोग अपलोड करते हैं रात को, तो ये देख पा रहे होंगे इधर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप. तो आपको कुछ नहीं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और आपको कुछ डाउट्स है तो डाउट आप पूछ सकते हो, नहीं तो सेशन को जो हम लोग वाइंड अप करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और आपका कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो. हम लोग जो है डेली 7 बजे आ रहे हैं लाइव, 7 से 8 बजे तक. और आपका कुछ भी डाउट्स हो तो ये नंबर नोट करो, 7978575715. इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है. कुछ भी डाउट्स होगा मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो आज हमारा 10th लेक्चर खत्म हुआ इस पे. नेक्स्ट हम लोग कल उसी टाइम पे मिलेंगे 7 बजे ही, लेक्चर नंबर 11 पे, और फिर से शुरू करेंगे. और आपको ये गूगल मीट में ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये गूगल फॉर्म फिलअप करो, आपको जो है ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसी ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाना है. तो उसमें ग्रुप में आपको जो है डेली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्लास टाइमिंग ये सब. ठीक है, और टोटल ये जो है आप लोग के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप लोग भी ये जो थोड़ा एफर्ट लगाओ, क्लास से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमको भी मजा आएगा पढ़ाने के लिए. क्योंकि आप अगर नहीं भी करोगे तो हम लोग तो पढ़ाएंगे ही, तो आप अगर करोगे तो थोड़ा हम लोग का भी थोड़ा अच्छा रहेगा, मोटिवेट फील करेंगे हम लोग. सो अगर आपका कुछ भी डाउट्स हो तो डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे इधर से. ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज 99 में आप ज्वाइन कर सकते हो, और पेमेंट कर देना, हम लोग जो है आपको लिंक दे देंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और आपका कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना. और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी जो है इसमें जुड़ पाए हमारे साथ. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका राइस का ही खत्म हो गया था. तो ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं इधर, ये वाला जो नंबर दिख रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल हैशटैग एग्रीकल्चर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.